हा कुठेही तुम्हाला बस जिथं कन्व्हिनियंट काय करू सर shall we start now sir? Good morning to all. We all knows about the COVID-19 pandemic, for which to boost your immunity. It's very important. Accordingly, today, Dr. Balasaheb Sawant, Konkan Krishi Vidyapit, Dapoli, organizing one-day national webinar on yoga, enhancing immunity in pandemic. On this occasion, I welcome Dr. S.D. Sawant sir, Honorable Vice Chancellor, Dr. Balasaheb Sawant, Konkan Krishi Vidyapit, Dapoli, and President of today's function. I also welcome Dr. S.S. Narkhede, Director of Instruction, Dr. Balasaheb Sawant, Konkan Krishi Vidyapit, Dapoli. I welcome Dr. P.M. Haldankar, Director of Research, Dr. S.G. Bhave, Director of Extension Education, and Registrar Dr. P.S. Sawant for this webinar. I welcome Dr. Vijay Naik, Director of Sports and Co-Curricular Activities and convener of today's webinar. I welcome Sri Vishwas Phatak, yoga instructor and today's lead speaker of this webinar. And I also welcome all the participants who shown interest in yoga from all over the country. Now, I request Dr. Vijay Naik to give his introductory remarks. Dr. Vijay Naik, sir, please. Good morning, everybody. Honorable Vice Chancellor, sir, of our university, all directors, Associate Dean, Registrar, and Sri Vishwaji Phatak, who is the well-known yoga expert from Dapoli. I personally, being the convener of this webinar, welcome you all on this occasion. The whole country is presently facing the whole country as well as the world is facing the problem of COVID-19 pandemic. In this situation, yoga practicing can be the one of the solution to fight against it. And with the same objective, we are arranged this one-day webinar. I hope this will prove beneficial for health of all in this pandemic situation as well as during the routine life after the pandemic. Thank you very much. Now, I request Dr. S.S. Narkhede, Dean and Director of Instruction, Dr. B.S.K.K. Vidapoli, to deliver his remarks as a patron of this webinar. Narkhede, sir, please. Morning to all. Honorable Vice Chancellor Dr. Sanjay Sawant sir, Dr. Sanjay Bhave, Director Extension Education, Dr. Haldavnekar, Director of Research, Dr. Pramod Sawant, Registrar, Dr. Naik, Director of Sports and Co-Curricular Activities, and Yoga Guru Pathak Guruji, who is present with us for this webinar, all Associate Dean, heads of the departments, and dear participants. We know that this yoga is an ancient physical, mental, spiritual practice that originated in India, and the word yoga is derived from the Sanskrit word which means to join or to unite, symbolize the union of body and the consciousness. Today, it is practiced in various forms around the world and continue to grow its popularity, recognizing its universal appeal. On 11th December 2014, the United Nations proclaimed 21 June as International Yoga Day. Now, this yoga हा साधारण 10,000 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून प्रचलित आहे. या परंपरेचा उल्लेख नारदीय सूक्त आणि सर्वांना प्राचीन अशा ऋग्वेदामध्ये आढळतो.
हा आपणास पुन्हा सिंधू सरस्वती सभ्यतेचे दर्शन घडवतो. या सभ्यतेमधील पशुपतीनाथांच्या एका नाण्यावर देखील योग मुद्रा विराजमान होती. त्या काळात योगाचे व्यापकतेचे दायित्व आहे आणि प्राचीन उपनिषद मध्ये योगामध्ये काही शारीरिक आसनांचा उल्लेख हा आढळतो. या प्रसंगी गुरुदेव श्री रविशंकर म्हणतात की योग म्हणजे निव्वळ व्यायाम आणि आसन नव्हे, हा भावनात्मक समतोल आणि त्या आनंदी तत्वाला स्पर्श करताय आध्यात्मिक प्रगतीतील सर्व शक्यांची ओळख करून देणारे हे एक शास्त्र आहे. योगा, as I said, is from the dated long back. If we look at the chronology of earlier text describing yoga, yoga practice is unclear, but yoga shastra of Patanjali dates from 2nd century and which gained prominence in the West in the 20th century after being first introduced by Swami Vivekananda. This yoga we are celebrating today as the national webinar on yoga to boost immunity. Now, during this pandemic situation, we are very much aware that during this corona period, many activities were stopped. And we are aware that this year, due to COVID pandemic, it was difficult to celebrate the Yoga Day also, and to have the social distancing measures adopted by various countries to fight COVID-19 pandemic. Yoga was celebrated with the theme that yoga at home and yoga with family. So this year it was yoga at home and yoga with family. So we should be knowing that what are the benefits of yoga. Yoga is very successful and beneficial for all human beings if it is practiced on daily basis in the early morning. The major benefits of the yoga increases the muscle strength, increase flexibility of the body, it increases the respiration, energy and vitality for the day long your routine activities. It maintains the metabolism of the body. It reduces the weight, and it also reduces your cardiac and circulatory system. And it is very good for the athletes as well as for the youth. So this yoga, we should have the routine practice of performing yoga, which will have a good effect. Now this yoga, today's webinar is aimed at boosting the immunity. I think immunity boosting is a necessary part in our day-to-day routine life, where we think that due to the season change, we may suffer from the cold, and we think that it is due to the cold weather. But the sickness, antibodies and other medicines can help to recover the body and disease. However, to increase the immunity of a body system, yoga comes to the rescue. Yoga is one of the most efficient and time-tested natural immunity booster that can lead to a good health, sickness-free body. Yoga lowers the stress hormones and strengthens the nervous system, while we also stimulate the lymphatic systems, which remove toxins from the body. So performing yoga every day is good for every one of us. So I think on the today's webinar, we should be committed to perform yoga at least for some time every day in the morning, and it should be adopted as a routine system. So I welcome you all again and hope that this webinar will be useful for us. And from this webinar, you will be encouraged to perform the yoga every day and to boost your immunity and to get relieved from the stress which has caused to our mind as well as to the body due to this COVID lockdown situation. And we don't know how long it is going to continue. But in this system,
in this lockdown situation, pandemic situation, if we perform the yoga every day, that will that will help to release the stress and will help to increase the immunity of your body. I hope this will be useful for all of us. Thank you for giving me an opportunity to speak. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I request Honorable Vice Chancellor and President of this webinar to give presidential remarks. Dr. Sawant, sir, please. Good morning, everybody. All participants, including the Dean of Agriculture, Dr. Satish Narkade साहेब, त्यांच्याबरोबर असलेले बाकी सगळे असोसिएट डीन्स अँड अदर डायरेक्टर्स, तुमच्या या वेबिनारचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नाईक, who is Director Sports of the and his entire team, and all other participants. Good morning again. वेबिनार साठी इथे जे योगा टीचर म्हणून आलेले आहेत फाटक जी, त्यांना नमस्कार. या सगळ्यांना नमस्कार. योगाबद्दल छान माहिती सांगितली आपल्या नारखेडे साहेबांनी सुरुवातीला, त्यामुळे मी आता जास्त काय बोलत नाही. फक्त हा जो वेबिनार आहे, हा वेबिनार बेसिकली योगा फॉर बूस्टिंग इम्युन सिस्टम. ही काय आहे? इम्युन सिस्टम काय आहे? इम्युन सिस्टम म्हणजे इट्स बेसिकली बॉडीमध्ये काही नेटवर्क आहे. नेटवर्क बिटवीन lymph nodes, blood system, some organs where antibodies and other things are developed. त्या सगळ्या नेटवर्कचं प्रॉपर नेटवर्क एनर्जाइज झालं तर बॉडी इम्युन होते बेसिक. मग आपण म्हणतो की योगा हा कुंडलिनी जागृत करण्यासाठी किंवा कुंडलिनीला एनर्जाइज करण्यासाठी योगा. मग याचा जर तुम्ही विचार केला तर बेसिकली एनर्जायझिंग सिस्टम्स. सो जी इम्युन सिस्टम आहे आपल्या बॉडीमध्ये असलेल्या व्हेरियस नेटवर्क, त्याला एनर्जाइज करण्यासाठी योगाचा वापर हा यातला मेजर कन्सेप्ट आहे. आणि त्या कन्सेप्ट बद्दल बेसिकली आपले योगा टीचर तुम्हाला मायन्यूट डिटेल्स मध्ये चर्चा करतीलच. योग करण्यासाठी म्हणजे योग आपण म्हणतो इट शुड बी काइंड ऑफ अ लाईफस्टाईल ऑफ अ कॉमन मॅन नाव. पण त्या लाईफस्टाईल बरोबर योग पासून जास्तीत जास्त चांगलं फायदा मिळवण्यासाठी, पर्टिक्युलरली इम्युन सिस्टम मध्ये जास्त फायदा मिळवण्यासाठी तुम्हाला काही बॅकग्राऊंड सुद्धा जरुरी आहे. फॉर एक्झाम्पल वी से दॅट बी हायड्रेटेड. मग त्या हायड्रेशन मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी ज्या म्हणतो, सकाळी उठून पाणी प्या, निवांत बसा, पहिल्यांदा कोमट पाणी प्या, मधाबरोबर प्या, फळांचा रस प्या, शहाळ्यांचा पाणी प्या, हायड्रेटेड. विटॅमिन सी अगेन इज इम्पॉर्टंट फॉर क्या कहते हैं इम्यून बूस्टअप करण्यासाठी. विटॅमिन सी again you talk about citrus fruits, many other fruits, citrus के अलावा भी even simple जे आजकाल कोकणामध्ये काकड्या मिळतात, they are also good in rich in minerals and vitamin C. Third aspect तो आपल्या प्रोबायोटिक्स, योगर्ट किंवा दही हे जर बॉडीमध्ये तुम्ही जर व्यवस्थित ठेवलेलं असेल तर these bacteria keep you active. Your energy system as well as immune system is kept active with these bacteria. So take care of that. बऱ्याचशा अशा गोष्टी ज्या आहेत की आपण याच्यामध्ये की आपले इंडियन स्पाइसेस आहेत. इंडियन स्पाइसेस प्रोटेक्ट युअर बॉडी फ्रॉम अँटीऑक्सिडंट्स, ऑक्सिडंट्स बेसिकली.
फ्री रॅडिकल जे म्हणतो आपण, तो फ्री रॅडिकलला थांबून धरण्याचं काम इंडियन स्पायसेस करतात. मग आपण जे काय वेगवेगळे काढे वगैरे जे रेकमेंड करतात सध्या इम्युन पोस्टिंगसाठी, त्याचा उपयोग आहे. म्हणजे रेग्युलर तुम्ही स्पायसेस घ्या. थर्ड, विटॅमिन डी, विच इज व्हेरी कॉमनली रिक्वायर्ड. बट जसे कोकणामध्ये आता इतके दिवस पाऊस आला, त्या पावसाच्या पिरियडमध्ये बिलकुल सनलाईट वॉज नॉट देअर. मग त्या सनलाईट सकाळी 9 वाजल्यापासून 3 वाजल्यापर्यंतच्या सूर्यप्रकाशामध्ये तुमची बॉडी कमीत कमी 1 तास 2 तास तरी गेली पाहिजे. मग त्यासाठी तुमची लाईफस्टाईल पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहे. की मग विटॅमिन डी जर तुम्हाला बाहेरून मिळत नसेल, सूर्यप्रकाशातून मिळत नसेल, तर तुम्हाला एक्सटर्नल सोर्स घ्यावा लागेल. म्हणजे असे हे सगळे जे लाईफस्टाईलचे प्रकार आहेत, ते पहिल्यांदा तुम्ही व्यवस्थित त्याचं मार्गक्रमण केलेलं असेल, तर आजचा हा वेबिनार तुम्हाला जास्त चांगल्या प्रकारचे रिटर्न्स देऊ शकतो. आणि त्या दृष्टीनं तुम्ही विचार करा की तुमच्या योगासनाच्या बरोबर किंवा योग साधनेबरोबर या बाकीच्या लाईफस्टाईल जर तुम्ही चांगल्या रीतीने ठेवल्या, तर तुम्हाला योगाचा जास्तीत जास्त चांगला फायदा इम्युन बुस्टिंगसाठी होऊ शकेल. त्याचा सर्वांनी विचार करावा. आणि मग त्यानंतर ऑफकोर्स आय थँक ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी, प्लस गिविंग मी an opportunity to speak to you. And congratulate the organizers that organizing such a nice webinar on a very useful topic. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I request Mohit Shinde introduce today's lead speaker and resource person of yoga. Mohit Shinde, please. थैंक यू सर. सुप्रभात. आज के अवसर पर हमें दापोली के प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक श्री विश्वास जी फाटक हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं. उनका शिक्षण कृषि स्नातक के रूप में 1985 साल में पूरा हुआ है. योग आयुर्वेद से पारंपरिक जोड़ होने के कारण 1990 में योग शिक्षक प्रशिक्षण नासिक योग विद्याधाम से पूरा किया है. उन्होंने 1991 से योग के बारे में प्रचार कार्य शुरू किया है. योग शिविरों में मार्गदर्शन करते करते अभी तक जगह जगह निःशुल्क योग के शिविर लगाए हैं. 2014 से पतंजलि भारत स्वाभिमान के माध्यम से योग आयुर्वेद का प्रचार शुरू किया है. व्यक्तिगत मार्गदर्शन सामाजिक माध्यमों से तथा दूरभाष संपर्क से निरंतर चलता रहा है. संस्कृत में पहले से ही रुचि होने के कारण उपनिषद और भगवत गीता आदि में अध्ययन किया है. उसमें से प्राप्त व्यक्तिमत्व विकास के पंचकोशात्मक विकास को जाना है. उस पर पाठशाला में, विद्यालयों में और समाज में मार्गदर्शन किया है. नई दिल्ली के संवादशाला मंडोली से संस्कृत संभाषण शिक्षण के रूप में प्रशिक्षण लिया है. मैं फाटक सर को विनती करता हूँ कि आप हमें अपने योग अभ्यास के व्याख्यान की आपकी योग अभ्यास के व्याख्यान की शुरुआत करें. धन्यवाद सर. Now, I request Sri Vishwas Phatak and Sri Ajit Jadhav to start today's session. Vishwas Phatak sir and Ajit Jadhav sir, please. कई सालों से समाज की सेवा के लिए योग, अध्यात्म, आयुर्वेद के प्रचार में लगा हुआ हूँ. अभी मैं ये
सभी के दिए हुए सेवा के अवसर को सर आंखों पर लेकर आपकी सेवा को प्रारंभ करता हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा जिस प्रकार से आयोजन करके समाज हित में, राष्ट्र हित में योग का महामारी के निर्मूलन के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे संवर्धन किया जाए, इस विषय पर ये जो हमारा व्याख्यान है, हमारा जो वेबिनार है, उसके ऊपर हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वेबिनार की कुछ शिष्टाचार होते हैं, जैसे कि हम सभी इसमें अवगत है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो माइक होता है उसको म्यूट करके रखेंगे और जो भी संवाद करना है वो अपने जो सूचना होती है SMS द्वारा हम जो भी संवाद करना है वो संवाद कर सकते हैं। तो हम आज योग और ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, प्रतिरक्षा संस्था, उसका दोनों का पहले अध्ययन करेंगे, थोड़ी बारीकी में उसकी जानकारी लेंगे और बाद में हम अपना योग का जो कार्यक्रम है उसको लेंगे। सबसे पहले जब भी योग का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत ओंकार से की जाती है। ओंकार एक परमेश्वर का नाम होता है। परमेश्वर को स्मरण करके, उनको भावना से प्रार्थना करके हम योग के किसी भी सत्र की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। तो हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान का स्मरण करके 3 बार हम ओंकार का जाप करते हैं। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। इस प्रार्थना में हमने यह संकल्प किया है कि हम सभी इस राष्ट्र के, जगत के वासी, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से संवाद से रहकर एक दिशा में एक प्रकाश की, हम सब भारतीय हैं। भारतीयता इसका अर्थ होता है प्रकाश की ओर जाना। तो हम भारतीय होने के नाते हम प्रकाश की ओर जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले कुछ शुद्धिकरण का कार्यक्रम और इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र का विषय आता है तभी हमें पहला कार्य शुद्धिकरण का किया जाना आवश्यक होता है। इसके लिए हम देखेंगे कि योग के जो 6 शुद्धि क्रियाएं है उसमें से एक होती है नेति। यहाँ ये जो महामारी है उसका पहला प्रवेश होता है अपने नासिका मार्ग से। तो उसके लिए हम नासिका मार्ग को शुद्धि के लिए जलनेति का प्रयोग करते हैं। जलनेति में हम एक ऐसा जो एक पात्र होता है
जो पात्र होता है उसमें पानी भर कर लेते हैं, वो गुनगुना पानी होता है। वह पानी न बहुत अधिक गर्म होता है न ठंडा होता है, गुनगुना पानी होता है, जो कि हमारे इस हाथ पर डालने पर हमें हाथ को कुछ गर्म न लगे, इतना अधिक गर्म न लगे, इतना गर्म गुनगुना पानी होता है। उसमें थोड़ा सा नमक डाला जाता है, इतना सा नमक जैसा कि दिया जाता है बहुत बार। उस पानी में नमक डालने से अपने नासिका मार्ग की त्वचा को जो ठंडे पानी से या कुछ कीटाणुओं से हानि पहुंचती है, उससे नमक अपनी प्रतिरक्षा करता है। तो ये जलनेति का अभ्यास आजकल के दिनों में बहुत ही बहुत आसान है, सहज है, कम समय लेने वाला है, क्योंकि आजकल हम सभी को समय का अभाव होता है। तो कम समय में हमें पूरी प्रतिरक्षा यानी कि हमारा जो संरक्षण है वो करने के लिए अभी हम देखेंगे कि जलनेति कैसी की जाती है। अजीत जी जाधव हमें दिखाएंगे। ये इस पात्र में पानी भरा है, नासिका मार्गों को ऐसा पूरा समांतर किया है। हाँ, और एक नासिका से पानी डाला जाएगा और दूसरी से इस समय मुंह से पानी लिया नहीं जाएगा, मुंह से सांस को लिया जाएगा, छोड़ा जाएगा, केवल नाक से। अभी दूसरी नासिका से देखेंगे, दूसरी बाजू में डालेंगे और इस बाजू से निकालेंगे। एक नासिका से पानी डाला और दूसरी से निकाला। उस समय हमने मुंह से अपनी सांस लेना छोड़ना शुरू रखा है, सांस को रोक के नहीं रखना है और नाक से भी सांस को नहीं लेना है, सांस को बंद नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत अच्छे, बहुत ही आसान विधि है। इससे कई सारी रुग्णालयों में, अस्पतालों में कई सारे डॉक्टरों ने अपनी प्रतिरक्षा की है, अपना संरक्षण किया है इस कोविड-19 के संसर्ग से। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ये बहुत ही आसान सा प्रकार है। जैसे हम ये जलनेति का अभ्यास करते हैं, जलनेति एक शुद्धि क्रिया में से एक है, और वैसे दूसरा एक अभ्यास होता है, योग के विधाओं में यम नियमों का पालन किया जाता है। तो जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें जो नियम दिए गए हैं, उसमें अग्नि में कुछ आहुति डालकर उसका जो धुआं निकलता है उसको धूपन विधि कहा जाता है। हर दिन जैसे ही यज्ञ किया जाता है, प्रातः सायं यज्ञ किया जाता है अपने संस्कारों में और परंपराओं में, तो यज्ञ में हम कुछ आहुति डालकर उससे निकलने वाला औषधि धुआं, उसमें क्या क्या डालना है ये हम अभी प्रात्यक्षिक देखने वाले हैं, किंतु उसमें क्या क्या डाला जाता है तो कैसे किया जाता है उसका मैं वर्णन करता हूँ। जो वर्णन इस प्रकार है, जो कोयला होता है हमारे घर में, या तो पत्थर वाला कोयला जो खदानों में मिलने वाला कोयला होता है वो भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जब कोयले को हमने ऐसा प्रज्वलित किया होता है, तो प्रज्वलित कोयले में आग नहीं होती है, केवल वो कोयले की अग्नि होती है। उस अग्नि में हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो औषधि द्रव्य वाले, जैसे कि हमारे घर में भी जो औषधि तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे कि हल्दी होती है, अजवाइन होता है, दालचीनी होती है, उसमें काली मिर्च होती है, जैसे जैसे कपूर होता है हमारे घर के अंदर, कपूर होता है, उसके साथ साथ पुदीना का अर्क भी होता है। ऐसे कई सारे जो तत्व है जो औषधि माने जाते हैं, हमारे अनुभव से औषधि होते हैं, उनको क्या किया जाता है, हमें बिल्कुल उसके अंदर जो चूर्ण होता है, जैसे ये चूर्ण रखा है यहाँ, ये हल्दी का इत्यादि का जो सभी, उसमें धूप भी डाला जा सकता है, ऊद डाला जा सकता है। तो इस प्रकार जब ये तैयार होता है चूर्ण, वो चूर्ण अग्नि के जलते हुए कोयले के ऊपर डालने से एक धुआं निकलता है, उसको सूंघ कर अपने अंदर रखा जाता है, फेफड़ों में कुछ 5-10 सेकंड रखा जाता है, और 5-10 सेकंड रखने से उसके बाद जो उसको नाक से फिर से बाहर छोड़ा जाता है। और ये कर्म करने के पश्चात हमें क्या करना होता है, जैसे हमें ये धूपन का विधि
करने के पश्चात हमें नाक में घी डालना होता है। नाक में 2-2 बूंद घी डालेंगे और थोड़ा उल्टा लेट कर जब सो जाएंगे तो आराम से अपनी त्वचा को, यदि कोई असावधानी से कोई हानि हुई हो तो हानि से उसका संरक्षण अपना ये जो घी करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्रिया कैसे की जाती है। हमारा थोड़ी तैयारी बाकी है, इसके बाद हम वो दिखाएंगे, किंतु तब तक हम वो चर्चा करेंगे कि जो योग है और योग का ये प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को ठीक करने में क्या योगदान है। तो हम जानते हैं पिछले साल के दिसंबर माह से ये महामारी की आगाज हुई थी और पूरा विश्व थर्रा गया था। इस कारण हर कोई सोचने लगा कि क्या किया जाए, तो नई महामारी आ गई है। किंतु हमारे पास जब ऐसा कोई संकट होता है जिसका कोई उत्तर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हर कोई व्यक्ति विशेषकर भारतीय लोग भगवान को पुकार लगाते हैं। और हमें ये जानने में बड़ा आनंद आएगा कि जब भी हम भगवान को पुकार लगाते हैं तो भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं और वो व्यवस्था हमारे लिए भगवान ने पहले से ही कर रखी है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से यानी कि 5 साल पहले से ही सभी में योग का प्रचार, घर घर योग का प्रचार करने के लिए योग दिन का कार्यक्रम आयोजित किया था। इसीलिए हमारा पूरा भारतवर्ष और विश्व के 190 देश योग से परिचित है। और जब भगवान को हम पुकार लगाते हैं तो भगवान ने पहले से ही अपने शरीर के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसी कृपा दे के रखी है, उसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। ये प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा होता है जिनको भी प्रतिरक्षा तंत्र को समुचित और बहुत ही अच्छी स्थिति में रखना है, उनको क्या करना होता है, उसकी चाबी है। प्रतिरक्षा तंत्र के खजाने की चाबी किसमें है, तो योग में है। और हजारों योग की जो विशेषता है वो ऐसी है, ये बहुत ही सस्ता तंत्र है, ये आत्मनिर्भर तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का प्रचार किया है हमारे देश के अंदर। तो ये आत्मनिर्भर तंत्र है, न किसी के पास जाने की आवश्यकता, ये बहुत ही सस्ता है, ये हमारे लिए उपलब्ध तंत्र है, ये इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं है और इसमें बहुत ही अल्प समय लगता है। यानी कि प्रतिदिन आधा घंटा से 1 घंटा यदि हम योग का अभ्यास करें तो ये हमें पूरी आश्वस्त करता है कि हमें किसी भी महामारी से प्रतिरक्षा तंत्र हमारा चौकन्ना रहे और सज्ज रहे। ठीक है, तो अभी हमारी तैयारी हो गई। अभी हम धूपन की विधि देखते हैं। इस धूपन में अभी इसको थोड़ा दर्शाया जा सकेगा। ये देखो, ये ऐसे जो अंगार है वो पूरी तरह से खुले हुए हैं, अभी प्रज्वलित हुए हैं। तो उसके ऊपर हम ये एक चूर्ण जैसे ही डालेंगे, जैसे चूर्ण डालेंगे तो धुआं निकलेगा। ये जो धुआं है ये औषधि युक्त धुआं होने के कारण उसको 5 सेकंड तक अंदर रखा जाता है और बाद में फिर से बाहर छोड़ा जाता है। फिर से एक बार हम दिखाएंगे। ऐसे 2, 3 से 5 बार, जिनको भी बाधा हुई है, संसर्ग हुआ है, उनको 5 बार तक ऐसा धुआं लेकर अंदर रखना है। ये बिल्कुल ही कारगर उपाय होता है। जैसे कि पूरे हम जब बाफ लेते हैं तो गले तक जाती है। जब हम नेति करते हैं तो पूरा नासिका मार्ग शुद्ध हो जाता है। बाफ लेते हैं तो गले तक जाती है। जब काढ़ा लेते हैं तो पेट में जाता है, कब जाएगा अपने फेफड़ों तक कुछ पता नहीं चलता। किंतु ये जो औषधि है, ये जो सीधे सीधे अपने फेफड़ों में जाकर हर एक वायु कोश में एल्वियोलाई तक जाती है और वहां का जो शुद्धिकरण है वो करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। ये सद्य प्रभावकारी होती है, यानी कि अभी करो अभी पाओ, इस प्रकार से इसका लाभ होता है। तो हम देख रहे थे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे योग से ठीक की जाती है। तो अभी हम योग का थोड़ा व्याख्यान जो है उसको बाद में रख कर हम क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर भी हो गई है
तो क्या क्या किया जाना चाहिए ये हम देखेंगे। तो अभी इसके बाद नाक में घी डाल देता बाहर गिरा नहीं तिकडे गिरा नाक में घी डालने का कार्यक्रम करेंगे। अभी तक हम क्या करेंगे, तब तक हम आगे वाली चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा कि प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे होती है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली का हम थोड़ा सा प्रणाली का थोड़ी जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्रियात्मक अभ्यास है, इसीलिए थोड़ी व्यवधान बीच बीच में आ रहा है, बाकी हम अध्ययन करते रहेंगे। तो प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके माँ के दूध से उसको पूरे एंटीबॉडीज मिलते हैं। उसके कारण क्या होता है, उसकी पूरी प्रतिरक्षा होती है किसी बाह्य आक्रमण से, या अभी ये नाक में घी डालने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसा धुआं अंदर लेते हैं तो यदि कोई संभावित हानि हुई हो तो उसको ठीक करने के लिए हम नाक में घी डालते हैं। इसको भी जल घृतनेति कहा जाता है। योग की परिभाषा में इसको घृतनेति कहा जाता है, आयुर्वेद की परिभाषा में इसको नस्य बोला जाता है। तो ये सब सुसंगत है। इस प्रकार से हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुसज्ज कर सकते हैं, उसको संवर्धित कर सकते हैं। हम अभी देख रहे थे कि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, माँ के दूध से एक बच्चे को 2-3 साल तक पूरी प्रतिरक्षा मिलती है। उसमें से जो भी एंटीजन इत्यादि होते हैं वो उसका संरक्षण करते हैं। बाद में अपने सीने के अंदर ये जो स्टर्नम होता है, ये जो हड्डी होती है, इसके पीछे एक थाइमस ग्लैंड, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें से थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है, हमारी पूरी प्रतिरक्षा, थाइमोसिन नाम का एक द्रव्य होता है, वो कोशिका तक जाकर हर एक तंत्र में जाकर अपना प्रतिरक्षा करता है। जैसे ही एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है 15 साल, 16 साल, 20 साल तक, यानी कि ये इसी में हमारे योग का भी योगदान मैं बताने जा रहा हूँ कि जो भी योग करेगा उसकी ये जो थाइमस ग्लैंड की एक विशेषता है, यानी कि अलग सा बर्तन है उसका, कि ये जब हमारा प्रौढ़ता आ जाने के बाद वो व्यक्ति अपनी थाइमस ग्लैंड को सिकुड़ने की स्थिति में ला जाता है। किंतु योग के अभ्यास से ये पूरी तरह से सिकुड़ना बंद होता है और बहुत दीर्घ काल तक ये थाइमस ग्लैंड कार्यरत रहती है, और वो उसके कारण अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छे चलती है। ये हम तर्क से जान सकते हैं। इसके मैंने बहुत ढूंढा है, किंतु इसका कोई आधार संदर्भ तो नहीं मिला, किंतु हम ये वास्तविक अनुभव के आधार पर तर्क से कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से थाइमस ग्लैंड को अपना योग जो है वो बहुत लंबे समय तक अपने प्रतिरक्षा के लिए उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो जब थाइमस ग्लैंड जिसकी श्रिंक भी हो गई, सिकुड़ भी गई है, तो क्या होता है, टी सेल्स नाम के जो सेल्स होते हैं जो थाइमस ग्लैंड में, जिसका बिल्कुल अच्छी तरह से पोषण होता है, जो ये जो WBC हम सब जानते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती है, उसमें टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, वो जो बोन मैरो में तैयार होती है सब WBC। तो ये इनका पोषण, टी सेल का पोषण अपने थाइमस में होता है, उसका पुनरुत्पादन चलता रहता है शरीर में, और वो टी सेल्स प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र में बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कितने प्रकार के प्रतिरक्षा के प्रतिसाद होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम प्रात्यक्षिक कार्यक्रम में पहले उसको हम प्राधान्यता देते हैं। तो इसके बाद हम योग के कुछ विधानों को देखने जा रहे हैं, किंतु योग के बारे में मैं पहले बताता हूं कि इस प्रकार जब हम देखा देखी योग करते हैं, या हम कहीं टीवी पर हो या अपने कंप्यूटर पर हो देखकर योग करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हमें बहुत ही सावधानी से अपने आत्मविश्वास के आधार पर करना चाहिए। नहीं तो हमारी तो ऐसी मंत्रणा है, हमारा तो कहना ऐसा है कि आप किसी भी जानकार अनुभवी योग शिक्षक के मार्गदर्शन के और उसके निगरानी के अंदर ही योग का अभ्यास करें, तभी हम बिल्कुल
किसी भी हानि के सिवा योग का अभ्यास कर सकते हैं। किंतु अभी अभी आप लोग जो भी जानकार है वो भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, ऐसी कोई निषेध नहीं है। बहुत ही साधारण किंतु बहुत ही उपयुक्त ऐसे हम योग के विधान देखेंगे। तो हम इसका जो सबसे पहला है, जैसे कि आदरणीय कुलगुरु जी ने बताया कि हमारा जो डी जीवन सत्व है वो उसको हमें यदि प्राप्त करना है तो हम सुबह को जब सूर्य उदय होता रहता है तो अपने खुले शरीर से, यानी कि जैसे कपड़े ना हो अपने शरीर के ऊपर, और सूरज को हम ऐसे देखते देखते, अभी हम देखेंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे किए जाते हैं। तो 2 से 3 सूर्य नमस्कार उनका प्रात्यक्षिक वो करते रहेंगे और मैं बोलता रहूंगा। इस सूर्य नमस्कार में हम जब सूरज की धूप में खुले शरीर से ये करते हैं तो अपने शरीर त्वचा के अंतर्गत डी जीवन सत्व, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, डी जीवन सत्व, क जीवन सत्व, जो कि हम फलों से पाते हैं। तो अभी इस सूर्य नमस्कार में हम 7 प्रकार के आसनों की एक श्रृंखला करते हैं। इसमें अभी मंत्र के साथ करेंगे। ओम राम मित्राय नमः एकम द्वे। तो ये 12 आंकड़ों में सूर्य नमस्कार किया जाता है। तो इसमें सूरज की उपासना होती है, आसनों का अभ्यास होता है, प्राणायाम होता है, मंत्र का उच्चारण होता है, ऐसे कई सारे लाभ होते हैं। तो पूरा अपना व्यक्तित्व जो पंचकोशात्मक हमारे संस्कृति के अनुसार है उसका पूरा संवर्धन और परिपूर्ण पोषण होता है सूर्य नमस्कार के साधना से। इस प्रकार हम देखते हैं तीसरा सूर्य नमस्कार। ओम ह्रीं रवये नमः एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। इस प्रकार से हमने देखा सूर्य नमस्कार। एक बार और एक ऐसे ऐसे दिखाओ सभी को, इस बाजू से भी हम बाजू से देखेंगे। ओम ह्रूं सूर्याय नमः एकम द्वे तीन चार पाँच छः सात, गति से करो, 8 9 10 11 और 12। जो भी युवा है, शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, वो गति से कर सकते हैं। जो भी अपनी अपनी, इसमें और भी एक नियम होता है कि हम जब ये कोई भी व्यायाम करते हैं तो उसमें हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपना आयु, अपना शरीर की क्षमता, उसके अनुसार हमें करना होता है। नहीं तो हमें इससे लाभ नहीं पाए जा सकते और हमें क्या हानि नहीं होनी चाहिए और पूरे लाभ मिलने चाहिए। इस प्रकार से हमें ये देखना है कि अभी हम आगे आसन करने जा रहे हैं। आसन से पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, प्राणायाम की विधि करेंगे और बाद में हम आसन करेंगे। तो अभी हम जो सूक्ष्म व्यायाम का महत्व मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें ये सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं तो अपने शरीर के, ये सूक्ष्म व्यायाम दिखाए जा रहे हैं, शरीर के भिन्न भिन्न जोड़ और स्नायुओं के सक्षमीकरण के लिए, वहां अटके हुए वात को दूर करने के लिए हमें ऐसे, यह अभी हाथ के सूक्ष्म व्यायाम हो रहे हैं। अभी ये कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, पहले कलाई के लिए हो गए, अंगुलियों के लिए हो गए, अभी कोहनी, अभी ये कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। इससे हमारे जोड़ों में अटके हुए वात को दूर किया जाता है और स्नायुओं को भी शिथिल किया जाता है। अभी कंधों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। अभी देखो, जिन कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या आती है, हाथ ऊपर उठता नहीं है, तो उसके लिए ये हर दिन यदि हम ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कंधों के लिए करेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आती है। यदि कोई भी समस्या आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, अभी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हो सकता है कि वो अभी कुछ एंटीबायोटिक दवा दे दे। तो ये हमें जानना, अभी हम जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक दवा जो होती है वो अपने पेट के अंदर, गट माइक्रोबायोटा जिसको बोलते हैं, पेट के अंदर होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देते हैं एंटीबायोटिक दवाएं। इसके कारण क्या होता है, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत ही
अपचित यानी कि वो कमी हो जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को हानि पहुंचती है। तो इसके लिए हमें योग के साधना से किसी भी एंटीबायोटिक की आवश्यकता से बचना संभव हो पाता है। तो अभी हम देखेंगे ये सूक्ष्म व्यायाम हो गए। सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात हम अभी प्राणायाम के विधानों की ओर जाएंगे, क्योंकि वेद शास्त्रों में बताया गया है कि प्राणो औषधि, कौन सा भी औषध हो, वो हमारे मानव निर्मित हो या दैवी हो, मंत्र का हो या आधुनिक उपाय हो, सभी उपाय तभी काम करते हैं। वो मंत्र आता है अथर्व अंगिरसी दैवी मानुषिम च औषधया प्रभवन्ति यदा त्वं प्राण जिन्वसि। जब प्राण शक्ति अनुकूल है तभी हमें कौन सी भी औषधि काम में आती है। तो इसका अनुभव कई सारे लोग कर चुके हैं, क्योंकि ऑपरेशन भी हुआ हो तो भी समस्याएं नहीं जाती है। तो इसके लिए प्राणायाम का बहुत ही महत्व है, जो पतंजलि और आधुनिक अनुसंधान में इतना पूरा सच निकल के आया है कि प्राणायाम से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, आई हुई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ये सब कार्य प्राणायाम से होते हैं। तो ये जो हम पहला प्राणायाम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, तो भस्त्रिका प्राणायाम का हम उसको प्राणायाम बोल रहे हैं, किंतु ये विशेष रूप से भस्त्रिका विधि का अभ्यास है। तो इसमें क्या करते हैं, हम मध्यम गति और मध्यम शक्ति से अपनी मर्यादा में रहकर लंबी गहरी सांस लेते हैं। 2 से 3 सेकंड तक सांस लेते हैं और 2 से 3 सेकंड सांस लेने में और छोड़ने में समान शक्ति, समान कालावधि और समान घर्षण की आवाज। नासिका मार्ग से घर्षण होगा तभी तो ऊर्जा। इसमें ये जानना आवश्यक है, जिनको भी व्याधि का निर्मूलन करना है तो थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न होना आवश्यक है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे शक्ति लगाकर थोड़ी भस्त्रिका की जाती है। जो भी ऊर्जावान युवा व्यक्ति है उनको क्या करना है, थोड़ी शक्ति लगाकर, जैसे शक्ति को और गति को बढ़ाने से अपने शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो पूरी तरह से जो भी जीवाणु हो या विषाणु हो, कोई भी व्याधि का कारण हो, उसको दूर करते हैं, क्योंकि अपने शरीर के कोने कोने तक हम इस भस्त्रिका विधि से प्राण शक्ति की आपूर्ति करते हैं। शरीर का कोई भी कोना प्राण शक्ति से वंचित नहीं रहता है। इसके कारण हमें ये जानना आवश्यक है कि भस्त्रिका प्राणायाम हमने जो चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जिसको अनिवार्य बोला जा सकता है, मैंडेटरी बोला जा सकता है। हर एक व्यक्ति को जो भी स्वास्थ्य की इच्छा, हम सभी करते हैं, स्वास्थ्य की इच्छा करने वाले हर व्यक्ति को प्रतिदिन ऐसा भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। केवल इसमें सावधानी ये है कि जिनका भी हाई बीपी की समस्या हो, उनको ये बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। या तो नहीं करेंगे तो भी ठीक है, केवल लंबी लंबी गहरी सांसें भरनी है, बिना आवाज के भरनी है, ठीक है। तो हमने भस्त्रिका देखी, इससे कई सारी बीमारियां दूर होती है, किंतु ये निश्चित रूप से प्राण शक्ति की आपूर्ति के कारण ये पूरी तरह से अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सक्षम बनाता है। हाँ, अब हम देखने जा रहे हैं कपालभाति का अभ्यास है। कपालभाति योग के 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक है और उसको प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कपालभाति। अभी हमने भस्त्रिका करते समय लेने और छोड़ने में समान शक्ति, समान कालावधि लिया, तो अभी कपालभाति शुरू करें। कपालभाति में हम सांस छोड़ने में कम समय, अधिक शक्ति और घर्षण से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पेट को अंदर करके सांस को बाहर छोड़ेंगे और जब सांस अंदर जाएगी, पेट बाहर छोड़ने से सांस अंदर जाएगी। अंदर सांस जाते समय उसकी आवाज नहीं होगी और उसको थोड़ा अधिक समय लगेगा। इसकी तुलना में, सांस छोड़ने की तुलना में सांस लेने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। उसमें घर्षण की आवाज नहीं आएगी और उसमें कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपने आप सांस अंदर जाएगी, जैसे अपना पेट ढीला छूटेगा। पेट का धक्का देकर हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, उस समय नाक से ध्वनि आ रही है। यह है कपालभाति। कपालभाति ये फेफड़ों की शुद्धि के लिए और फेफड़ों के द्वारा रक्त की शुद्धि, रक्त के द्वारा पूरे मांसपेशी कोशिकाएं और पूरे शरीर की शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के अनुभव के अनुसार उनका कहना है कि कपालभाति से दूर नहीं हो
सकने वाली ऐसी कोई भी व्याधि आज तक जानी नहीं गई है। कपालभाति के उचित समय, उचित संख्या और उचित प्रकार से किए गए अभ्यास से हर व्याधि को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से कपालभाति को भूलोक की संजीवनी उन्होंने माना है। तो ये कपालभाति देखने के पश्चात हम आगे चलेंगे। तो कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हर व्यक्ति को खाना महत्वपूर्ण है, वैसे ही हर व्यक्ति को कपालभाति प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट अवश्य करनी चाहिए। जैसे जो हमने भस्त्रिका देखी, वो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट की जानी चाहिए और कपालभाति कम से कम 5 मिनट सुबह। जैसे कि आयुष मंत्रालय की जो मान्यता है, उन्होंने जो प्रसारित की हुई सूचनाएं है, उसमें प्रतिदिन सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट यदि हम कपालभाति करेंगे तो अपने श्वसन तंत्र को हम सक्षम रखते हैं और सक्षम रखने के कारण पूरी तरह से प्राण ही एक शरीर का महत्वपूर्ण, सांस के साथ जीवन की शुरुआत होती है और सांस के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। जब सांस फिर से नहीं आती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इतना महत्व होता है सांस का, तो उसको ठीक रखने के लिए कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका बहुत सारा विवरण है, हम विस्तार से कभी और समय जान पाएंगे, किंतु अभी हम इतना कपालभाति का विवरण देखकर हम आगे जाएंगे, क्योंकि कपालभाति के पश्चात दूसरा प्राधान्य, वरीयता में, प्राधान्य क्रम में या रेफरेंस में दूसरा यदि कोई महत्वपूर्ण अभ्यास है श्वसन का, वो है अनुलोम विलोम। कपालभाति से जैसे शुद्धि होती है, अभी हम अनुलोम विलोम का अभ्यास देखेंगे। अनुलोम विलोम में एक नासिका से सांस लिया जाता है, दूसरे से छोड़ा जाता है, दूसरे से लिया जाता है, पहली से छोड़ा जाता है, और ये एक निरंतर किया जाता है। जैसे सागर मंथन देव और दानव ने किया, वैसे हम अपनी सांसों की डोरी से, अपने मेरुदंड की मंथनी से पूरे अपने व्यक्तित्व में मंथन करते हैं और पूरी तरह से विष को बाहर निकलते हैं और अमृत पाने का कार्य इस अनुलोम विलोम से करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसके गुण और लाभ वर्णन करने में बहुत समय लगता है। इसके लिए हम संक्षेप में ये जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से जो भी आजकल जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो होता है अपने हार्मोनल बैलेंस। यदि हमारा होम्योस्टेसिस ठीक रहेगा, जैसे मैंने थाइमस ग्लैंड के बारे में बोला, वैसे पीनल ग्लैंड, उसमें से आने वाला मेलाटोनिन नाम का जो एक हार्मोन होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत चुस्त दुरुस्त रखता है। इसके लिए हमें अनुलोम विलोम के अभ्यास से पीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, वो जो अपने गोनाड्स, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज, ये सभी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, उनका एकदम संतुलित स्राव उत्पन्न होता है। इसके कारण अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है अनुलोम विलोम से। अभी ये है अनुलोम विलोम, एक विधि से दिखाया गया है। हमने 22 से शुरुआत किया, 22 से छोड़कर अनुलोम विलोम का हम जो आवर्तन है वो पूरा करते हैं। कई परंपराओं में अनुलोम विलोम को ऐसा हाथ बहुत देर तक जब करना होता है तो ये प्रणव मुद्रा की जाती है अनुलोम विलोम में। जैसे कि ये 2 अंगुलियों को बंद करके हाथ ऐसा रखा जाता है, यानी कि 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बाकी सब प्राणायाम के अभ्यास हमें भोजन के पश्चात 5 घंटे छोड़कर करने पड़ते हैं, खाली पेट सुबह करने पड़ते हैं। किंतु अनुलोम विलोम में ये सुविधा है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी हम जो देखने जा रहे हैं, वो भ्रामरी में ये सुविधा है कि हम भोजन के पश्चात 1 घंटे में भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम से प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त, ऐसा हमारा जो संप्रेरकों का संतुलन बैठता है वो, इसीलिए अनुलोम विलोम भी सुबह और शाम 5-5 मिनट किया जाएगा तो अपने मन को भी शांति मिलती है, सब तनाव और जो भी चिंताएं होती है वो सब दूर हो जाता है। अभी हम देखेंगे इसके पश्चात, अनुलोम विलोम के पश्चात शीघ्र ही हम क्या करते हैं, भ्रामरी का अभ्यास करते हैं। ये भ्रामरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक जैसा भौरा होता है ना, भौरे की गुंजन जैसा ध्वनि हम करते हैं केवल ये परान्मुखी मुद्रा करके। आंखों को हम ऐसे बंद करते हैं और उसके ऊपर 3 अंगुलियां रखते हैं, एक उंगली माथे पर रखते हैं और कान
कान बंद करते हैं अंगूठे से। इस प्रकार जो भ्रामरी है, भ्रामरी का बहुत ही महत्व है। भ्रामरी हमारे अंदर हमारे जो अंतर मन के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो प्रणालियां होती है, एक होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। ये जो भ्रामरी से वेगस नर्व जो होती है, वेगस नर्व, उसको हम प्रेरित करते हैं और वेगस नर्व को सक्रिय होने के कारण हमारे मन में, हमारे चित्त में शांतता का भाव उत्पन्न होता है और इस शांतता के भाव के कारण पूरे सभी स्ट्रेस हार्मोन जो भी एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन जैसे जो भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, उसी के कारण हमारे चेतना में भय उत्पन्न होता है, चिंताएं उत्पन्न होती है, तनाव आ जाता है। ये सब दूर करने का काम ये छोटा सा भ्रामरी का अभ्यास करता है। ये जो भ्रामरी है, हम 5 से लेकर 10, 20, 25, 50 बार तक भी करेंगे। आजकल जो टेंशन नाम की बहुत बड़ी मानसिक बीमारी आ गई है, उसका ये बिल्कुल अच्छा उत्तर है। यदि कोई व्यक्ति केवल बैठकर ऐसी भ्रामरी 108 बार करेंगे तो कोई उसी क्षण, जैसे अभी इन्होंने भी अनुभव किया होगा कि अभी सब चिंता तनाव सब निकल गए हैं, अपने चेतना में पूरी शांति का अनुभव है। तो ये है भ्रामरी का अभ्यास। और ये भी महत्वपूर्ण है, भय के कारण इस महामारी में अपना कोई परिचित व्यक्ति, अपना जो निकट वाला व्यक्ति यदि इसमें बाधित हुआ है तो अपने अंदर ही एक भय की आशंका उत्पन्न हो जाती है, क्या मुझे भी होगा, क्या उसका क्या होगा। ये जो भय उत्पन्न होता है, उस भय से भी अनुलोम विलोम के बात की गई भ्रामरी हमें बहुत ही संरक्षण देती है। इस दृष्टि से भी ये प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ही सक्षम बनाती है। तो ये है भ्रामरी का अभ्यास। और भ्रामरी के बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास देखेंगे और बहुत ही आसान हम आसनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा आसन करने पर हम यदि अपना ध्यान देंगे तो उसमें बहुत समय लगता है और उसका इस प्रतिरक्षा तंत्र को सक्षम बनाने में एक मर्यादित सहभाग है। इसके लिए जो मर्यादित सहभाग के लिए मर्यादित हम उसका उपयोग करेंगे। अभी हम केवल 6-7 आसनों को देखेंगे। अभी हम पहला आसन देखने जा रहे हैं, उसका नाम है उष्ट्रासन। ऊंट जैसे अपनी शरीर की और गर्दन की स्थिति हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अपने रीढ़ की हड्डी को पिछली बाजू को ऐसा घुमाया गया है। ये पीछे झुकने वाला आसन है। इसमें अपने गले की जो गल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है, उसके ऊपर तनाव आता है और उसके कारण उसकी स्वास्थ्य में, थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य में उसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है। ये आसन करते समय हमें ये जानना चाहिए कि आसन लेते समय जब हम पीछे जाएंगे तो सांस को भरेंगे और आसन स्थिति लाने के बाद हम सामान्य श्वसन शुरू रखते हैं। अभी इसके पश्चात दूसरा आसन हम देखेंगे, उसका नाम है शशकासन। आसनों में यह विशेष है कि एक बार यदि पीछे झुकने वाला आसन किया तो एक बार उस आगे झुकने वाला आसन किया जाता है। यह है शशांकासन या शशकासन भी उसको बोला जाता है। इसमें हाथ आगे खींचे जाते हैं और इससे अपने मन मस्तिष्क को एकदम आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। जो हृदय के नीचे थोड़ा सा उसी स्तर पर अपने मस्तिष्क का स्थान आ जाने से उसमें रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। और ये जो अपना मस्तक होता है, ललाट होता है, कपाल होता है, वहां अत्यधिक रक्त के आपूर्ति के कारण अपनी बुद्धि की क्षमता भी बढ़ती है और शांति का अनुभव आता है। हम किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने शशकासन देखा। ये जो बैठ कर करने वाले आसनों के पश्चात हम पेट के बल लेट कर करने वाले 2 आसन देखने वाले हैं। उसमें पहला आसन हम देखेंगे शलभासन। शलभासन यानी जो एक ग्रास हॉपर होता है, उसके जो पाँव होते हैं उसके जैसे ये ठोड़ी बिल्कुल आगे लगी हुई है। अभी दोनों पाँवों को उठाया जाएगा और बाद में एक एक पाँव, हाँ, ये है शलभासन। इससे बिल्कुल अपने रीढ़ की हड्डी को, अपने जो जिनको साइटिका समस्या है उनके लिए बहुत ही समस्या का समाधान हो जाता है। अभी एक पाँव से किया है और एक ऊपर ले सकते हैं, एक पाँव से, दूसरे पाँव से किया है और फिर से एक बार दोनों पाँव से करेंगे। इस प्रकार से
अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। शरीर का लचीलापन बढ़ाती है। ठोड़ी के ऊपर दबाव आने के कारण अपने पेट साफ करने में भी इसका लाभ होता है। अभी इसके आगे हम थोड़ा सा मकर आसन का अभ्यास देखेंगे। मकर आसन में हम क्या करते हैं, मकर आसन के कई सारे प्रकार है, इसमें ये भी एक प्रकार आता है। तो ये ठोड़ी हमने हथेलियों के ऊपर रखी है, दोनों कोहनियां एक दूसरे के पास रखी है और अभी दोनों पांव से मकर आसन का अभ्यास करते हैं। जैसे कोई जो घड़ियाल होता है वो अपने पूंछ को हिलाता रहता है, वैसे हम ये क्या करते हैं, अपनी एड़िया पीछे अपने पिछवाड़े पर एड़ियों को लगाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि ये देखा गया है इस कोविड-19 के समय में, जो जिनकी फेफड़ों की क्षमता वर्धन आवश्यक होता है, तो जब भी हम पेट के बल सो जाते हैं तभी हमारे पिछले वाले जो एल्वियोलाई होते हैं वो एल्वियोलाई खुलते हैं और उसमें से भी हम क्या करते हैं, सांस लेना छोड़ना वो भी सक्रिय हो जाते हैं। नहीं, यदि हम ऐसे नहीं आसन करते हैं तो वो एल्वियोलाई जो वायु कोश होते हैं उनका उपयोग ही नहीं होता है, वो अपने ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो जिनको भी वेंटिलेटर इत्यादि लगाना पड़ता है या ऐसे सांस भी देना पड़ता है, तभी उनको ऐसे पेट के बल लेटना पड़ता है, तभी हमारे जो भी सुप्त होते हैं वो एल्वियोलाई भी कार्य में आते हैं। तो इसके लिए हम यदि प्रतिदिन ऐसे पेट के बल लेटकर आसन करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा लाभ हमें मिलता है। तो इसके बाद हम देखेंगे पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन। इस आसन में हम पहला आसन देखेंगे सर्वांगासन। तो ये जो सर्वांगासन है, तो सर्वांगासन में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है माता और भगिनियों के लिए। तो ये अति महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या अति होती है, तो इसमें ये जो थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ही अच्छा पोषण होता है इस सर्वांगासन से। सर्वांगासन में हमारी जो दृष्टि होती है वो पाँव के अंगूठे पर रहती है और बाद में आंखें बंद की जाती है। पूरे इसको शोल्डर स्टैंड भी अंग्रेजी में बोलते हैं। वो पूरे कंधे से लेकर पूरा शरीर ऊपर है, तो इसमें भी अपने हृदय की क्षमता अच्छी बढ़ती है, क्योंकि ये जो पाँव से जो अशुद्ध, पाँव से और हाथों से अशुद्ध रक्त अपने हृदय तक जाता है और हृदय अधिक कार्य क्षमता से कार्य करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार मस्तिष्क को भी अच्छा रक्त प्रवाह आता है, तो मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है, बुद्धि का संवर्धन होता है। इस कारण हमें ये सर्वांगासन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये सर्वांगासन में गर्दन को आगे झुकाने जैसी स्थिति में था। अभी सर्वांगासन के अभ्यास के बाद, सर्वांगासन का अभ्यास 3 मिनट 5 मिनट किया जाता है माता भगिनियों के लिए, और उसके पश्चात बिल्कुल मत्स्यासन का अभ्यास किया जाता है। उसमें सर्वांगासन में जो जालंधर बंध लगता है, अभी मत्स्यासन में मत्स्य बंध से जालंधर बंध को खुला किया जाता है। इसमें अभी इसमें भी थायराइड ग्रंथि का बहुत ही अच्छा पोषण होता है। अभी थायराइड ग्रंथि को अत्यधिक रक्त संचार मिल जाएगा और नई कोशिकाएं भी उत्पन्न हो जाएगी, जो पुरानी रहेगी वो निकल जाएगी। इस प्रकार ये है मत्स्यासन। तो मत्स्यासन का लाभ ये प्रतिरक्षा तंत्र में भी बहुत अच्छा होता है। जिनके भी थायराइड और जिनका ये जो थाइमस ग्लैंड भी सक्रिय रहेगी, उसका भी लाभ मिल पाएगा, जो भी युवा है उनके लिए, और जो भी आगे वाले जीवन काल में है उनके लिए थायराइड ग्लैंड का जो आरोग्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम आसन छोड़ेंगे सर। अभी इसके पश्चात हम देखने जा रहे हैं बहुत ही लोकप्रिय जो आसन होता है शवासन। तो शवासन की लोकप्रियता बहुत ही है, इसके सभी को बहुत प्रिय होता है। अभी हम शवासन देखने जा रहे हैं। तो शवासन में मैं अभी सूचना देता जाऊंगा और उसके अनुसार उन्होंने पहले से कुछ किया है, कुछ बाद में भी मन में प्रक्रिया करेंगे। हमारे पाँव में 1 से 1.5 फुट का अंतर, एड़िया एक दूसरे की दिशा में और अंगुलियां एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में, दोनों पाँव को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। इसमें योग निद्रा का भी अभ्यास ज्यादा समय तक जब किया जाता है तो योग निद्रा का भी अभ्यास होता है। अभी अपने दोनों हाथ बहुत ही शिथिल
स्थिति में अपने शरीर से थोड़े से दूर, हथेलियां ऊपर की दिशा में, अंगुलियां सहज स्थिति में रखेंगे। गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। हो सकता है अपना सर एक दिशा में घूम जाएगा। अभी पूरी तरह से सहजता से आंखों को बंद करके, बंद आंखों के सामने मन की दृष्टि से देखना है, अपना पूरा शरीर को देखना है। पूरे शरीर को हम ढीला कर रहे हैं। इस ढीले शरीर में से हम अपनी अतिरिक्त प्राण शक्ति, जहां भी अपनी संकल्प विकल्पों में प्राण शक्ति अतिरिक्त रूप से किसी इंद्रिय में जाती है, न पाँव में, न हाथों में, गर्दन में, सर में, हृदय में, वो सभी को हम वापस एक जगह लाकर संतुलित प्रकार से उसको पुनर्वितरित करेंगे। अभी हम संक्षिप्त रूप में देखने वाले हैं, इसके लिए हम तेजी से करेंगे यह सब क्रिया। प्रयत्न, शैथिल्य और अनंत समापत्ति, ऐसा सूत्र आता है पतंजलि का। तो हम अभी बाएं पांव से पूरी तरह से इच्छा शक्ति और अतिरिक्त प्राण शक्ति को हम ऊपर खींचने वाले हैं। पूरा बायां पांव खाली कर दिया। अभी दाहिने पांव से इच्छा शक्ति और अतिरिक्त प्राण शक्ति को ऊपर खींच रहे हैं। अभी कमर के भाग से, पेट के भाग से, छाती के भाग से ऊपर खींच रहे हैं। पूरी प्राण शक्ति जो अतिरिक्त है उसको ऊपर खींचा, पूरी इच्छा शक्ति को ऊपर खींचा। अभी बाएं हाथ के अंगुलियों से, हथेलियों से, कलाई से, कलाई और कोहनी के बीच वाला बायां हाथ, बाई कोहनी, बाई भुजा, बाया कंधा, पूरी तरह से बाया हाथ भी शिथिल हो गया। अभी दाहिने हाथ की अंगुलियां, हथेली, कलाई, कलाई और कोहनी के बीच वाला दाहिना हाथ, अभी दाहिनी कोहनी, दाहिनी भुजा, दाहिना कंधा, पूरी तरह से हमने दोनों पाँवों को, दोनों हाथों को, कमर, पेट, छाती, इसको हमने पूरी तरह से ढीला कर दिया है, शिथिल कर दिया है। वहां से अतिरिक्त प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति को गर्दन के पास एकत्रित किया है। अभी गर्दन के स्नायुओं को भी अतिरिक्त ढीला कर दिया है। वहां से भी इच्छा शक्ति और अतिरिक्त प्राण शक्ति को ऊपर खींच रहा है। अभी पूरी तरह से चेहरा, कान, ओठ, जीभ, थोड़ी, नाक, गाल, सभी अपने मुख से अपने इच्छा शक्ति को दो भ्रुवों के बीच में एकत्रित किया है। भ्रुवों मध्य प्राणमावेश सम्यक, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। तो तभी वहां दो भ्रुवों के बीच में हमने प्राण शक्ति को एकत्रित किया है। अभी हम कुछ समय के लिए अपने शरीर से बाहर जाएंगे और भगवान के आशीर्वाद से उसको सक्षम और ऊर्जावान बनाकर फिर से अपने शरीर को देने वाले हैं। तो अभी हम ऊपर 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 जा रहे हैं। अपना शरीर नीचे दिख रहा है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं आकाश में। नीचे देखेंगे तो एक ब्रह्म समुद्र में तैरता हुआ अपना बहुत ही छोटा सा शरीर देख पा रहे हैं। दूर दूर देखेंगे तो आकाश इस समुद्र को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भगवान की असीम अमर्याद अगाध सृष्टि को हम अनुभव करते हैं। भगवान को नमन, वंदन, प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें सभी विश्व को इस संकट से दूर करने की शक्ति, क्षमता और ऊर्जा प्रदान करे। भगवान उनके कृपा दृष्टि से हमारे ऊपर आशीर्वादों की वर्षाव कर रहे हैं। तो भगवान से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस भक्ति में आदान प्रदान में हम कुछ देर शांत रह जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनको कृतज्ञता पूर्वक नमन करके हम फिर से अभी शरीर के पास आ रहे हैं। शरीर के बहुत निकट आ गया। अपना पूरा शरीर हमें दिख रहा है। अभी हम शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा से, नई ऊर्जा, नया संकल्प, नई शक्ति से भरने वाले हैं। अभी हम सर से लेकर पांव तक ऊर्जा दे रहे हैं। पूरा शरीर अभी झगमगा गया है, अपने ऊर्जा से, प्रकाश से भर गया है। अभी गर्दन को सीधा करेंगे, हथेलियों को थोड़ा, अंगुलियों को थोड़ा हिलाएंगे, पाँव को हिलाएंगे। सर से लेकर पाँव तक अपना शरीर ऊर्जावान हो गया। अभी दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर घिसकर आंखों पर रखेंगे। आंखों में ऊर्जा का संचार करेंगे और बाई बगल को मुड़कर आराम से उठकर बैठेंगे। तो इस प्रकार हम जब ये विश्रांति आसन या योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो पूरी तरह से कोई तनाव, कोई दबाव नहीं रहता है। पूरी अपनी प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो एकदम सक्षम हो जाता है। तो अभी हम संक्षेप में, कुछ समय बाकी है हमारे पास, तो संक्षेप में हम देखेंगे। केवल 10 मिनट में हम पूरा करेंगे ये सब अपना अभ्यास। आज का वेबिनार हम पूरा करेंगे। तो
हम देख रहे थे कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको हानिकारक क्या घटक होते हैं और क्या उसको लाभदायक घटक होते हैं। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके लिए सबसे यदि कोई हानिकारक चीज होगी तो अपने मन का भय, क्योंकि मन में यदि भय बैठ गया तो हट्टा कट्टा व्यक्ति एक क्षण में भय के कारण पूरा बिखर जाता है, वो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी तहस नहस हो जाती है। इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि पूरी तरह से हमें निर्भय होकर हमारी जो भी सूचनाएं अपनी आती है शासकीय माध्यम से, उसमें पहला ये भी बताया जाता है कि आप निर्भय रहे, उससे डरो मत, उसका सामना डट के करो। तो इस प्रकार से जो निर्भय जो होता है वो जो प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरह से निर्बल करता है एक क्षण में। इसके लिए हमारा जो योग का अभ्यास है वो पूरी तरह से निर्भय बनाने में सक्षम करता है। हम जब भी योग करते हैं वो डरते नहीं, आखिरी सांस तक लड़ने का अभ्यास योग के अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो हानिकारक घटक है भय, उसको दूर करने में योग सक्षम है। दूसरा होता है बहुत ही अति व्यस्तता। अति व्यस्तता के कारण अपने शरीर को, अपने जो भी अपना कुटुंब होता है उसको हम ध्यान से नहीं देख पाते, उसके कारण हमें अपने अपराध बोध अपने अंदर आ जाता है। अति व्यस्तता के कारण हम अपने घर वालों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, हर समय व्यस्त रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इसके कारण एक अपराध बोध यानी गिल्ट कॉन्शियसनेस होती है। ये जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है वो भी एक प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत बाधा पहुंचाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम योग करते हैं तो योग करने से हम कृत संकल्प होते हैं, अपनी समय का व्यवस्थापन बहुत बारीकी से कर पाते हैं, आगे वाला तर्क के अनुसार हम किसी भी संकट को पहले आकर उसको दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये जो तनाव और अतिव्यस्तता को दूर करके हम अपने जो भी सह संबंधी रहेंगे सभी को न्यायपूर्ण समय दे पाते हैं और अपना जो भी अपराध बोध है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, उसको हम दूर कर पाते हैं। ये दूसरा भाग है। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि हमने देखा जो संप्रेरक होते हैं, जो अंतस्रावी ग्रंथि न्यूरोएंडोक्राइन्स होते हैं, उनके स्राव के कारण ये जो प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत ही अच्छा बल आता है, वो न्यूरोएंडोक्राइन्स जो होते हैं उसको सक्षम करने का काम, जैसे हमने देखा कई सारे बंध है, मुद्रा है, प्राणायाम है, उसके कारण हम योग से जो न्यूरोएंडोक्राइन्स है, वो जो ग्लैंड्स है, उनको एकदम अच्छा और संतुलित बनाते, समय पर आते, समय पर जाते, पूरी तरह से तनाव को दूर किया जाता है और जो भी जिस समय आवश्यक है वो बल, वो निर्धार, निश्चय की शक्ति हमें मिलती है। तीसरा कारण होता है शरीर में अशुद्धि। शरीर में अशुद्धि होने के कारण जो एक अपना गट माइक्रोबायोटा जिसको बोला जाता है, जो पहले ऐसे उसको माइक्रोफ्लोरा भी बताया जाता था, जो अपने आंतों में कई सारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपने प्रतिरक्षा तंत्र को अच्छा बल देते हैं, क्योंकि उसमें से ऑटो इम्यून डिसीज को भी दूर करने की क्षमता रहती है। क्योंकि यदि ये सब हमने किसी भी एंटीबायोटिक को लिया तो कई सारे लोगों को अनुभव रहेगा कि उनको दस्त लग जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है, उसके कारण ये सब माइक्रोबायोटा मर जाता है और वो अपनी प्रतिरक्षा तंत्र में समस्या उत्पन्न करता है। इसके लिए हमें ये जो माइक्रो है वो अशुद्धि के कारण, जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, तो उसके कारण ये जो विपरीत एंटीअमीबा होगा या डिसेंट्री वाले बैक्टीरिया हो गए, वो बढ़ना शुरू हो जाता है अशुद्धि के कारण, और उसके कारण ये अपने अच्छे वाले बैक्टीरियाओं को डिसेंट्री के कारण दूर किया जाता है और अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को हानि पहुंचती है। तो योग के कारण हम यदि प्रतिदिन करेंगे तो पेट भी बढ़िया साफ रहेगा। योग की शुद्धि क्रियाओं के द्वारा हर शरीर का अंग शुद्ध करने की व्यवस्था है और इस प्रकार हम शुद्धता के कारण अपना प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही सक्षम बनाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इंद्रियों की यानी डीजनरेटिव डिसीज आजकल के जीवन में अत्यधिक देखे जाते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और डीजनरेटिव डिसीजेस। यानी कि आजकल जो हमने देखा है, जो कोरोना के कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने कई सारे लोगों में हो गया है। हार्ट का फेल्योर होता है, लिवर का फेल्योर होता है, किडनी का फेल्योर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी क्षमता जो होती है वो पहले से ही बहुत कम स्तर पर रहती है। तो ये
बिल्कुल ही जो डिजेनरेटिव डिसीजेस है, जैसे कि डायबिटीज भी उनमें से एक है, जो अपने पैंक्रियाज होते हैं वो पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। तो हम योग से ये सभी जो हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उनकी क्षमता को हम उच्चतम स्तर पर लाकर रखते हैं। तो इससे ऐसे कोई महामारी भी आ जाए तो उसमें थोड़ी हानि भी हो जाए तो अपनी सक्षमता को पूरी तरह से अपने संरक्षण के लिए उपलब्ध करते हैं ये इंद्रिय। तो इस प्रकार हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिरक्षा तंत्र को जो इंद्रिय मल्टी ऑर्गन फेलियर की जो बला आती है वो प्रतिरक्षा तंत्र का एक बहुत ही संकट बन जाता है। इसके लिए अपने योग के द्वारा हम अपनी किडनी को, अपने लिवर को, अपने हृदय को, अपने पैंक्रियास को, अपने आंतों को बहुत ही अच्छी स्थिति में रखेंगे, तभी ये समस्या हमारे लिए आएगी नहीं। तीसरा होता है कोई भी व्याधि या संसर्ग, पहले से किसी को कोई संसर्ग यानी कि इन्फेक्शन हुआ होगा तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो संकट में होता है, वो व्यवधान में होता है। इसके कारण ये ऐसी कोई महामारी भी आ जाए तो उसको पहले, ये जो लोग व्याधिग्रस्त लोग पहले ही बहुत दुर्बल हुए होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो व्यवधान में होने के कारण अच्छे से वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। ये रिस्पॉन्स ठीक न होने के कारण व्यक्ति को संकट में आना पड़ता है। तो बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है उनको। तो हम जब योग करते हैं तो व्याधियों का संसर्ग को पूरी तरह से हम दूर ही रखते हैं। जैसे कि हमने देखा है आज पतंजलि के संस्थान में या योग करने वाले मेरे जानकारी में एक किसी को भी ऐसा संसर्ग नहीं हुआ है। यदि किसी को एक दो को हुआ ऐसा मैंने अभी पूछताछ करने के बाद, दीर्घ पूछताछ के बाद मुझे पता चला, किंतु उनको कोई बाधा नहीं हुई बाद में। तो ये है व्याधि का संसर्ग भी हम दूर रखते हैं। इसके पश्चात एक दूसरा भी एक उदाहरण बताने योग्य है कि ये जो मंगेशकर हॉस्पिटल है पुणे में, वहां नेति का अभ्यास हर डॉक्टर करता है। तो उनके 500 डॉक्टर में से एक को भी कभी इस कोरोना का संसर्ग नहीं हुआ, यद्यपि वे हर दिन प्रतिदिन कोरोना के रुग्णों के संपर्क में है। तो इस प्रकार से वहां के डॉक्टर केळकर ने ये बात गौरव से बताई है कि नेति के अभ्यास से कितना उनको लाभ हुआ। तो इस प्रकार और भी एक जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, जो एंटीबायोटिक होता है, तो एंटीबायोटिक का जब हम यदि अपने औषधीय के रूप में प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे जो गट माइक्रोबायोटा जो ध्वस्त हो जाता है, उसके कारण अपनी प्रतिरक्षा तंत्र संकट में आता है। तो उससे बचने का पूरी तरह से योग के भिन्न भिन्न विधि विधानों से हम हर व्याधि का उन्मूलन कर पाते हैं। तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो योग ये आश्वस्त करना चाहता है कि हर व्याधि को, हर समस्या को, स्वास्थ्य समस्या को हम दूर करने की, दूर रखने की क्षमता रखते हैं। ये योग पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पूरी तरह से सफल, काल परीक्षित तथा सस्ता उपाय है। तो हमारी हृदय से सभी को प्रार्थना है कि योग का, हमारे देश में कई सारी संस्थाएं योग का प्रचार करने वाले, जो भी अच्छा अधिकृत प्रामाणिक रहेगा उनसे संपर्क करें। और इस संपर्क के साथ आप इस योग के जो पावन गंगा है, भगवान की एक आशीर्वाद है, वो किसी भी विशेष धर्म का नहीं है, हर मानव का इसके ऊपर अधिकार है योग की परंपरा पर। तो हर कोई योग से अपना जीवन पावन करे, पवित्र करे, सशक्त करे और इस कोरोना जैसी महामारी से बचे और दूसरों को बचाने में सहायता करे। तो हम अंत में दो प्रार्थनाओं को गाकर अपने आज के वेबिनार को हम यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। एक प्रार्थना होती है सभी के स्वास्थ्य के लिए। ओम सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी शांति मंत्र गाते हैं। ओम द्यो शांतिः, अंतरिक्ष शांतिः, पृथ्वी शांतिः, आप शांतिः, औषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिः, विश्वे देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः,
सर्व शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नमः। धन्यवाद सभी को। Thank you, sir. Very informative session and well demonstrated by Ajit Jadhav and Vishwas Phatak, sir. So now this time to question answer. There is two questions. Kumar Upadhyay, question: every yoga disciplines have different Kapalbhati technique. Which technique is scientifically correct? Phatak, sir. हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आवश्यक भी है। ये स्पष्टीकरण देना अति उपयुक्त है। जैसे कि कपालभाति के कई सारे परंपरा है, पाठ है, उसको पाठ भेद कहा जाता है। उसमें मेरे जानकारी में जितने भी है सभी समुचित है। उसमें ऐसा कोई गलत या बराबर ऐसा कोई भेद नहीं है। बहुत सारे हमारी संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है योग के प्रचार में। तो क्या है, हमारे योग के जो मूलभूत ग्रंथ है उसमें भी ये पाठ भेद है। हिरण्य संहिता में अलग है, अपने जो हठ योग प्रदीपिका में अलग है। ये जो शुद्धि क्रिया कपालभाति है उसमें जैसे जैसे आवश्यकता रहेगी उसके अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है। मैं 2-3 प्रकार दिखाता हूँ। किसी किसी प्रकार में आता है, जैसे कि मैं अभी संस्थाओं का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम परंपराओं का नाम लेते हैं, मूल ग्रंथों का नाम लेते हैं, किंतु कहाँ सभी का योगदान अच्छा है, ये मैं पूरी कृतज्ञता के साथ बोल रहा हूँ। तो पहले बाएं से एक नाक से किया जाता है, सांस लिया जाता है, छोड़ा जाता है, किंतु उसमें ऐसा धक्का नहीं दिया जाता, लिया जाता है, छोड़ा जाता है। देखो ये 10 बार इससे हुआ या 54 बार किया जाता है इस दिशा, एक बाजू से, दूसरी बार ऐसे। ये 10 बार यहाँ से किया जाता है और 20 बार दोनों से। 54 बार दोनों से करने के बाद 108 बार दोनों से किया जाता है। ये भी ठीक है। अपना उद्देश्य, अपनी क्षमता और अपना अभ्यास इसके अनुसार यदि करेंगे तो ये जो इसका उपयोग क्या है, दोनों नासिकाओं को समान रूप से खोलने के लिए ये प्रकार बहुत ही उपयुक्त है और इससे भी लाभ होता है। और एक प्रकार होता है बहुत तेजी से करना, जिनके भी पेट के स्नायु अच्छे सक्षम है, प्रशिक्षित है, जिनकी भी हृदय में कोई समस्या नहीं, हृदय भी उत्तम स्थिति में है, उनकी आयु भी अच्छी है, ऊर्जावान है, युवा है, तो वो दुगनी गति से, यानी कि हम प्राय ये बोलते हैं कि 1 मिनट में 60 बार कपालभाति के धक्के दिए जाए, किंतु हम दुगनी गति से भी धक्के दे सकते हैं। जिनको बिना रुके 100 से लेकर 300 धक्के देने की क्षमता जिनमें आ जाती है अभ्यास के बाद, वो दुगनी गति से भी कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है, देखो। तो और भी एक मैंने सुनी हुई, मुझे तो सभी परंपराओं का ज्ञान होना कोई संभव नहीं है, किंतु और भी एक मैंने परंपरा जो सुनी है उसको मैं बताकर उसका भी महत्व मैं बता देता हूँ। जो कपालभाति में क्या करते हैं हम, ये जो हमारे फेफड़े जो स्पंज जैसे होते हैं, जो वायुकोश होते हैं स्पंज जैसे होते हैं, जब तक हम वो उसमें से गंदी हवा या जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त को जो शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसको हम बाहर नहीं फेंकते, तब तक नई हवा हम अंदर नहीं ले सकते। जैसे ये कोई गुब्बारे जैसा नहीं होता है, जितनी भरो उतना वो फूल जाएगा, वैसे नहीं होता है। ये स्पंज जैसे होते हैं, जितना उसमें से निकालोगे उतना ही हम अंदर भर पाते हैं। तो इसके लिए एक परंपरा और भी होती है कि एक ही बार सांस लेना और 7 या 10 बार सांस को बाहर छोड़ना। यानी कि देखो, एक बार सांस लिया,
ये भी परंपरा मैंने सुनी है। उससे क्या होता है, अधिक से अधिक जो फेफड़े वायु कोश होते हैं, एल्वेओलाई होते हैं, उनको हम खाली करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि हम जब आमतौर पर सांस लेते और छोड़ते हैं तभी पूरे वायु कोशों से प्राणवायु का विनिमय नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता है। तो जब हम पूरी तरह से खाली करेंगे तो नई हवा अंदर जाएगी और हर एक वायु कोश में हम नई ऑक्सीजन युक्त हवा भर पाते हैं, और जो पूरी तरह से वहां की जो रक्त की सूक्ष्म वाहिनियां होती है उनमें से रक्त को शुद्ध कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे पार्ट होते हैं। तो अभी हम उसमें से गलतियां कौन सी और वो नहीं होनी चाहिए ये हम देखेंगे। अभी बहुत संक्षेप में थोड़ा समय हम लेंगे इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें गलतियां कौन सी आती है वो हम देखेंगे। उसका सूत्र क्या है, भस्त्र्या इव लोहकारस्य रेच पूर्व ससंभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ दोष विशोषिणी। यानी कि जो लोहकार, जो लोहार होता है उसका जैसे भाता होता है, धोपनी होती है, उसके जैसा रेच पूर्व ससंभ्रमो, यानी कि रेचक और पूरक को करना है, गति से तेजी से करना है। कपाल भाति विख्याता कफ दोष विशोषण, यानी कि कपाल भाती है जो कफ दोष है उसको दूर करने में सक्षम होती है। और वो क्या करना है, जब हम धोपनी को देखते तो एक ही बार जोर लगाते, एक ही बार वो हवा तेजी से बाहर जाती है धोपनी से। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि एक ही बार हम जोर लगाएंगे और एक बार आराम से सांस को अंदर जाने देंगे। ये है कपाल भाती की व्याख्या जो बताई गई है भस्त्र्या लोहकार से। इसके कारण हम दूसरे देखेंगे कौन से दोष होते हैं। कपाल भाती में हम क्या करते हैं, कई बार जो नए नए सीखते हैं वो धक्का पेट से लगना चाहिए, उसके धक्का कंधे से देते हैं। ये कंधे से धक्का नहीं देना चाहिए, धक्का बिल्कुल पेट, जब सांस बाहर तो पेट अंदर जाना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पेट के ऊपर हाथ रख के जब सांस बाहर जाएंगी तो पेट अंदर जाना चाहिए, और जब पेट बाहर आएगा तो सांस को अंदर जाने देना चाहिए। पहला दोष है कि कंधे से धक्का नहीं देना है। हाँ, दूसरा दोष होता है गले से घर्षण की आवाज आती है कई सारे लोगों की। ये घर्षण है नासिका में, नासिका मार्ग में घर्षण होने के बजाय गले में होता है। तो यहाँ उष्णता उत्पन्न होती है, उष्णता से पीड़ा हो सकती है। और यहाँ का शुद्धिकरण, ये जो साइनस होती है अपने हड्डियों में, उन साइनस को भी शुद्धि करने की जो उसको सक्शन प्रेशर बोला जाता है, यहाँ से जोर से हवा बाहर आने से वहां से जो दूषित कफ होता है उसको खींचा जाता है बाहर, और वो अंदर ही शोष लिया जाता है, क्योंकि कफ अपना बल होता है, इसके लिए अंदर उसको शोषा जाता है कपालभाति में, वो बाहर नहीं निकल जाता है। तो इस प्रकार से गले से आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, यदि किसी को शक्ति कम पड़ रही हो यहाँ से घर्षण करने में, तो क्या किया जा सकता है, इस अंगुली को लगाए बिना नासिका मार्ग को, जैसे हम नाक को ऐसे छींकते समय, निकालते समय, कचरा निकालते समय नाक को ऐसा ये करते, बौना करते हैं, वैसे ऐसे कम शक्ति में भी यहाँ घर्षण की आवाज आनी चाहिए। शक्ति हमें कम है, यहाँ तक घर्षण नहीं आता है, यहाँ तक घर्षण नहीं आता, यहाँ तक ये आकर रुकता है, तो कम शक्ति में हम यहाँ घर्षण ला सकते। ठीक है। तीसरा दोष आता है कि कपालभाति करते करते कई लोगों की गति बढ़ जाती है पहले पहल, जैसे कि आने के लिए हमने नहीं दिया, तो क्या होता है, कपालभाति रुक जाती है। तो रुकना नहीं है, ये कपालभाति निरंतर करने से लाभ होता है। कम से कम 5 मिनट हम कपालभाति करेंगे निरंतर, तभी हमें लाभ होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक समान गति से हमें कपालभाति करते रहना चाहिए, और एक समान गति से करेंगे। और भी एक दोष आता है कपालभाति करने में, वो दोष मैं बताता हूँ, और बाकी दूसरा प्रश्न हम लेंगे। और एक दोष क्या आता है कि हम जब कपालभाति करते हैं तो जब कोई नई बात हम सीखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शरीर के सभी स्नायुओं का इसमें आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ केवल पेट के स्नायुओं से हमें धक्का देना है, न कि अपने चेहरे को सिकुड़ करके। थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है, किंतु कई सारे लोगों को इसमें ध्यान देना आवश्यक होता है। कैसे होता है कि गले ऐसे गर्दन को हिलाकर
जैसे पूरे चेहरे को मरोड़ करके हम सांस बाहर निकालें, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थोड़े दिन के अभ्यास के बाद। इसके लिए स्वामी जी महाराज कई सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। सहजता से करो, आनंद से करो, भाव से करो, श्रद्धा से करो, आस्था से करो, प्रसन्नता से करो। तो हंसते हंसते करना है। हंसते हंसते कपालभाति करने से कपालभाति के जो लाभ है वो दुगने हो जाते हैं। देखो ऐसे, बिल्कुल आराम से, मध्यम गति, मध्यम शक्ति, अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना है। आराम से कई बहुत ही अधिक समय तक, यानी कम से कम 5 मिनट तक बिना रुके बिना थके हमें करना होता है कपालभाति। तो ये कपालभाति का अभ्यास सभी लोग करें, इससे लाभान्वित हो जाए। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। So there is second question. Amol Mahajan, what comes first, yoga or pranayam? यानी कि जो योगासन और प्राणायाम के विषय में हम ये प्रश्न को मानते हैं कि योगासन पहले करें, सूर्य नमस्कार, योगासन इत्यादि पहले करें या प्राणायाम पहले करें। तो अभी मैं पहले एक दो बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो कपालभाति है और ये जो हमारा भस्त्रिका भी है, अनुलोम विलोम भी है, वो एक प्रकार से शुद्धि क्रिया के स्तर पर हम बहुत दिनों तक करवाते हैं, जो पहले पहले सीखने वाले जो होते हैं वो। और इसके कारण हम उसको पहले करते हैं और बाद में योगासन करते हैं। यानी कि शुद्धि क्रिया पहली होती है, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे योग के 8 अंग है। तो यम नियम में जो शौच जो नियम आता है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, वो शौच जो आता है वो उसमें शुद्धि क्रियाएं आती है। और जो शुद्धि क्रिया में हम कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शुद्धि भी उसको बोला जाता है, वो जब भी हम पहले पहल करते हैं वो शुद्धि क्रियाओं के ऊपर हमारा आग्रह अत्यधिक होता है। इसके कारण हम पहले ये जो हम बोली भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं प्राणायाम, किंतु वो शुद्धि क्रिया होती है। इसके लिए हम पहले करते हैं और बाद में आसन करते हैं। और ये पहले मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी एक बात मैं अपने व्यवहार की बता रहा हूं। हमारा पूरा दिनक्रम जो रहेगा, दिनक्रम में हमें कौन सी मनस्थिति आवश्यक है, इसके अनुसार हम बाद में क्या करें इसको हम निर्णय कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पूरा दिनक्रम जो ऐसे होता है बहुत ही शांतता पूर्वक रहता है, जैसे कि कोई भी प्राध्यापक हो या अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हो या विद्यार्थी हो, पूरा उसमें शारीरिक कोई कष्ट नहीं होते, परिश्रम नहीं होते, भागदौड़ नहीं होते। यदि कोई मैनेजर होते, एग्जीक्यूटिव होते, उनको बहुत भागदौड़ होती है, तो उनको थोड़ा उत्तेजित नहीं मैं बोलूंगा, किंतु सज्ज मनस्थिति की आवश्यकता होती है। किंतु जो भी जो अनुसंधान करने वाले शांत दिनचर्या वाले व्यक्ति होते हैं, उनको शांत मनस्थिति की उपयुक्तता अधिक होती है। तो इसके लिए जिसको जैसे आवश्यकता है, जिसको यदि शांत मनस्थिति की आवश्यकता है, तो अंत में हमें क्या करना चाहिए, ये जो शुद्धि क्रिया कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार, उद्गीत प्राणायाम करके हमें अपना योगाभ्यास पूर्ण करना चाहिए। और जिनको भी थोड़ी भाग दौड़ का जीवन है, पूरा जीवन में परिश्रम है, कष्ट है, व्यवस्थापन है, तो उनको थोड़ा सज्ज मनस्थिति की आवश्यकता होती है। न एकाग्रता की तो होती है, किंतु सज्जता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उनके लिए हमें बाद में व्यायाम और योगासन करेंगे तो अपने शरीर की ओर अधिक अपना प्राण शक्ति का संचारण अधिक रहेगा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति का संचारण अपने मस्तिष्क और मन और बुद्धि, चित्त के दिशा में अधिक होता है और वो उसमें हम सफलता पाते हैं। तो मेरे दृष्टि से यही उसका उत्तर है कि हम पहला क्या करें और बाद में क्या करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसको व्यवस्थापित करें। और पहले जो बताया कि जो प्राणायाम बाद में कुछ लोग करते हैं, तो ये जो प्राणायाम नहीं होते, पहले शरीर को लचीला बना के बाद में अच्छा ये जो शुद्धि क्रिया भी हो सकती है। इसके लिए पहले आसन करके बाद में शुद्धि क्रिया के तौर पर हम प्राणायाम करेंगे, तो उसका लाभ वैसे भी मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। Thank you, sir, for answer. Now I request all participants. Already feedback link will be sent on YouTube and Zoom chat box. Fill up the feedback link and send to it.
and get the e-certificate. Thank you. Now I request Dr. Nitin Wagde for vote of the thanks. Wagde sir, please. On behalf of this, hello. On behalf of this university, first of all, I would like to thank Honorable Vice Chancellor Dr. H.D. Sawant sir for his constant encouragement and moral support for successful organization of this webinar. At the same time, I would like to thank Shri Vishwasji Phatak, a renowned yoga practitioner, and Shri Ajit Jadhav, staff of this university and assistant yoga teacher, who spent their valuable time out of their day-to-day busy schedule and guided us all through various demonstrations. I am also very much thankful to the Dean, Faculty of Agriculture, Dr. Narkhede sir, Director of Extension Education, Dr. Bhave sir, Director of Research, Dr. Hardankar sir, Director of Sports and Co-curricular Activities, Dr. Vijay Naik sir, Registrar, Dr. P.S. Sawant sir, for their proper guidance time to time. Further, I would like to thank the University Sports Officer and in charge AKMU and their team for their continuous efforts in successful organization of this webinar, and also for providing us with internet facilities. I would like to thank all the associate deans, head of departments, professors, students, and all the participants who registered and attended this webinar without fail. At the end, I would like to thank each and everyone who are involved directly and indirectly in making this webinar a grand success. And at the end, with kind permission of Honorable Vice Chancellor sir, I declare that this function is over. Thank you.